Hello everyone, hope you all are doing good. My name is Mauli and today we are going to discuss our poem 2 from unit 2 which names Friend's Prayer. Now, our unit 1 was given theme of fable and folk tales, right? Like that our unit 2 was given one theme which is friendship. So all chapters of unit 2 contains one theme which is friendship. And this poem was written by Jill Wolfe. Before starting our poem, there is one very famous quote by Samuel Taylor Coleridge. He says that friendship is like a sheltered tree. ओके कोई भी फ्रेंडशिप होती है वो जैसे छाव देता है वो ट्री जैसे होती है, एकदम सूदिंग एंड एकदम कंफर्टिंग. एंड फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस, राइट? ओके, बिफोर मूविंग टू द poem, there is some pre-exercise which says that I wish my friend, which is, read the following sentence. First we have to read it. I wish my friend brings idli in her tiffin tomorrow. I hope my friend and I win the race tomorrow and may my friend get well soon. Okay, ये तीनों हमने sentences पढ़े. ये दोनों हमें similar लग रहे हैं, but this is kind of prayer, right? Prayer for friends betterment, right? So क्या बोल रहे हैं? 3 sentences, first, second and 3 is closest to prayer. इसमें से which of the sentence is closest to prayer? Then third one, okay? And why it is closest to prayer? Explain to your teacher and classmates. Because first one is wish, okay? This is for something for your wish, okay? Then second one is I hope my friend and I win the race tomorrow. This is also something for your selfishness, okay? मुझे जीतना है और साथ साथ में मेरे friend को भी जिता देना, like that. But third one is only and only for your friend, okay? And it is for her betterment or his betterment to get well soon. You are praying it, and of course may word is given here to plead towards to someone, okay? Yeah, so third one is closest. What would you pray for your friend? First speak about it and then write it down. Okay, आप अपने friends के लिए क्या pray करोगे वो आप बोलो और फिर लिखो. उसके लिए ना हमें कुछ reference pictures दी हुई है. See. So first this one girl is there and she is praying for her friend. जैसे कि may we have good bond together, okay? May we laugh and live long together. Then third one is may she achieves whatever she wish for. So these 3 things I will pray for my friend, okay? And this is subjective answer. You can write whatever you wish to for your friend. Okay. First of all, let's read a couple of lines. May my friendship always be the most important thing to me. Okay? May मतलब मैं ऐसे विश करती हूँ, मुझे ऐसा चाहिए कि मेरी जो फ्रेंडशिप है वो हमेशा मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहे. ओके? With special friends I feel I am blessed. So let me give my very best. मैं जब भी मेरे स्पेशल फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, जब भी मैं मेरे दोस्तों के साथ होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ब्लेस्ड. मुझे ऐसा लगता है जैसे कि समवन इज गिविंग मी ऑल देयर ब्लेसिंग्स. ओके, मैं खुश होती हूँ, मुझे ब्लेस फील होता है. सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट. तो मुझे भी अपने फ्रेंडशिप के मतलब कि मुझे भी अपने फ्रेंड्स के प्रति, मुझे भी अपने फ्रेंडशिप के लिए बेस्ट देना है. क्योंकि जब भी मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ होती हूँ मुझे कैसा लगता है? एज इफ आई एम ब्लेस्ड. ओके, आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर्स. I will try all that a friend can do to make their wishes come true. ओके, क्या बोल रही है? हम जब छोटे होते तब हमें सिखाते हैं शेयरिंग इज केयरिंग. दैट इज ट्रू, बट हमें सिर्फ शेयरिंग तक ही फ्रेंडशिप नहीं रखनी है. ओके, सो आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन जस्ट शेयरिंग. ओके,
द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर, मुझे उनके लिए भी चिंता है, जो अपने जो मेरे जो दोस्त हैं उनके प्लान्स है, उनकी जो होप्स है, उनकी जो आशाएं हैं, उनके जो फ्यूचर प्लान्स है, जो मेरी चिंता करते हैं उनके। आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू, मैं वो पूरा करने के लिए, मैं उनके वो प्लान्स है वो फुलफिल करने के लिए आई विल डू माई बेस्ट टू मेक देयर विशेस कम ट्रू। किसके लिए? कि मेरी प्रेयर से या फिर मेरे कुछ काम से या मेरी हेल्प से उनकी सारी विश पूरी हो जाए। मे देयर ऑल विशेस कम ट्रू। ओके, लेट मी यूज माई हार्ट टू सी, मुझे मेरा हार्ट टू सी टू रियलाइज वॉट फ्रेंड्स कैन बी and make no judgments from afar but love my friends the way they are. Sometimes many friendships ruin just because you judge them, okay, and most importantly judge them wrong, okay. कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से या फिर कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारी फ्रेंडशिप्स टूट जाती है, ओके. सो लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज वॉट माई फ्रेंड कैन बी, मुझे दिल से ये चीज़ देखनी है कि मेरे फ्रेंड्स है, टू रियलाइज, मुझे वो रियलाइज करने के लिए कि व्हाट फ्रेंड्स कैन बी, कि दोस्त किसे कहते हैं, एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार। एज आई डिस्कस कि कई बार ऐसा होता है कि आप दूर से ही सिनारियो को जज कर लेते हैं विदाउट नोइंग देयर पर्सपेक्टिव, ओके, और मुझे वो नहीं करना है। अफार, मुझे दूर से ही कोई जजमेंट नहीं लेना है। बट लव माई फ्रेंड द वे दे आर, पर मुझे वो जैसे है उनको ऐसे ही प्यार देना है। फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट दैट ओनली, राइट? ओके, सो वॉट शी इज टेलिंग हियर दैट मुझे मेरा दिल नहीं काम पे दिमाग नहीं काम पे लगाना है, पर दिल काम पे लगाना है, टू रियलाइज वॉट फ्रेंड्स कैन बी, ओके. Okay, so they have given us some exercise that read the poem silently as you read, underline the parts of the poem that you are agree with. That's the subjective thing, you have to underline the things which you are agree with, कि आपके साथ जैसा हो चुका है या फिर आप ये चीज़ से सहमत है. Second, now share the details of your underlined parts of the poem in group and explain why you like those lines. Okay, मतलब कि ये जो लाइन्स है, चलो हम देखते हैं. ओके, मे फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी, ये चीज़ के साथ मैं अग्री करती हूँ. विथ स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, ओके. आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन द शेयर द होप्स एंड द प्लान्स फ्रेंड्स फॉर केयर. आई विल ट्राई टू मेक देयर विश कम ट्रू. लेट मी यूज माई हार्ट, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. मुझे ऐसा लगता है कि ये दिस 4 lines आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आई हैव टू गिव द रीजन दैट व्हाई दिस 4 lines आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन फर्स्ट थिंग इज फॉर मी द फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई फील वेरी मच comforting, blessed, grateful when I am with them. Next, to make their wish come true. Okay, friendship is something which we are not connected by blood but we are connected by soul. तो मुझे ऐसा लगता है कि टू फॉर देयर हैप्पीनेस, फॉर देयर बेटरमेंट इज माइन. सो मुझे ऐसी इच्छा है कि उनकी भी सारी विशेस पूरी हो. एंड मेक नो जजमेंट फ्रॉम अफार, मैं भी आई ऑल्सो वॉन्ट कि मैं फ्यूचर में भी कभी भी फ्रेंडशिप में दूर से कोई जजमेंट ना ले लूँ कि ये ऐसा है या ये ऐसी है या मेरी फ्रेंड ऐसी है, ओके. आई वॉन्ट कि मैं उसके साथ 1-to-1 कन्वर्जेशन करके I solve the problem if there is any problem or any judgment, okay. So first 2 and third one says which line was underlined by most people in your group, share it with your teacher. So you have to do this activity in group, okay, but I guess this line will be more underlined by the students, okay, this one, because this is also life lesson, okay. So here our chapter ends, here our poem ends. Hope this is clear and hope your friends are also be grateful to having you. Thank you.